Good morning, students. In the last video, we discussed the important topic related to the general, and those topics will helps to solve the practical problem related to journal entries. You know what is journal entries? Journal entries are books of original entry in which we record any transaction at first time. Under this chapter we discussed various types of topics like traditional and modern rule of generalizing, discounts, trade discount and cash discount, and some kind of special journal entries like bad debts recovered, depreciation, outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation, interest on capital, interest on drawing. As well as we discussed the entries related to the opening balances, that is known as opening entry, compound journal entries, and thereafter we discussed some special entries related to the goods, all those situations in which we credit the purchase account when goods withdrawn for the personal purpose by the owner, or goods provided as a charity or as a sample, or goods destroyed by fire or lost by theft. Thereafter we discussed in the previous chapters entries related to the installation and transportation of capital assets. In this topic we discussed the particular assets account is debited instead of expense account. So such kind of expense will be treated as capital expenditure, not a revenue expenditure. Today we will move to the next topic of general, that is accounting for goods and service tax, GST. In the previous videos we also discussed what is GST, what are the types of GST, what are the history of GST. Today we will move to the accounting part of GST. When any organization paid GST, how it will record such kind of transaction in the books of account. Today we will discuss it. So first of all, we revised all the theoretical parts related to the GST in this video, and thereafter we will discuss the accounting treatment of goods and service tax. Let's start the today's topic, that is GST. First of all, what is the meaning of GST? Goods and service tax, the full form of GST, is an indirect tax levied at prescribed rate on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption. यानी GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि किसी गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पर यानी उसके सेल पर चार्ज किया जाता है। पेट्रोलियम और अल्कोहल प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर GST चार्ज होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। यहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है किसी गुड्स को सेल करना या किसी भी सर्विस को सप्लाई करना, सर्विस को प्रोवाइड करना। इट इज़ अ नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई several indirect taxes and it is based on principle of one nation one tax. GST एक ऐसा टैक्स है जिसके थ्रू हमने कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को
यूनिफाई किया है, जोड़ दिया है। और बेसिकली जो जीएसटी का जो थीम है, जीएसटी का जो ओरिजिन है, वो वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल आधारित है, यानी एक देश एक कर। कुछ समय पहले हमारे देश में कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल होते थे, जो टैक्सेशन के पॉइंट से, अकाउंटिंग के पार्ट से काफ़ी डिफ़िकल्ट होते थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स का निर्माण किया है, एक टैक्स को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। GST Act was passed in the Parliament on 24th March 2017 and it came into effect from 1st July 2017. गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो भारत की संसद में यानी पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 में पास हुआ था और पूरे भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेस मर्ज इनटू GST। आइए हम उस पॉइंट पे बात करते हैं कि GST में कौन कौन से टैक्सेस मर्ज किए गए हैं। GST has replaced many indirect taxes levied by central and state government। GST में कई तरह के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा गया है। सेंट्रल लेवल टैक्सेस हैव बीन मर्ज इनटू GST आर एज अंडर। अगर हम सेंट्रल लेवल के टैक्सेस की बात करें तो सेंट्रल लेवल में GST में कौन कौन से टैक्स ऐड किए गए हैं? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, यानी कि सेंट्रल, पहले जो ये तीनों टैक्सेस थे ये अलग अलग वसूल किए जाते थे, अलग अलग कलेक्ट किए जाते थे। एक्साइज ड्यूटी अलग कलेक्ट किया जाता था, सर्विस टैक्स अलग कलेक्ट किया जाता था और सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग कलेक्ट किया जाता था। और ये तीनों टैक्सेस जो होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट और कलेक्ट किए जाते थे। बट GST के इम्प्लीमेंट के बाद ये तीनों टैक्स को आपस में जोड़ दिया गया है सेंट्रल लेवल पे, और अब इन सारे टैक्सेस का नाम GST के नाम से जाना जाता है। स्टेट लेवल टैक्सेस डेट हैव मर्ज इनटू GST। कुछ स्टेट लेवल के भी टैक्स हैं जिनको जोड़ के स्टेट लेवल के टैक्सेस को जोड़ के GST का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन लॉटरी। यानी ऑक्ट्राई एंट्री टैक्स है, चाहे परचेज टैक्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट टैक्स हो, चाहे वैट हो, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स हो, चाहे लग्जरी टैक्स हो, चाहे टैक्स ऑन लॉटरी हो, ये सारे टैक्सेस को पहले स्टेट लेवल रेगुलेट करती थी और कलेक्ट करती थी और ये उसकी खुद की रेवेन्यू होती थी। बट अब ये सारे टैक्सेस को जोड़ के GST में इंक्लूड कर दिया गया है। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस और स्टेट लेवल के 6 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर, यानी टोटल 9 टैक्सेस को मिलाकर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को मिलाकर GST का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, GST का निर्माण किया गया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, GST रेट स्ट्रक्चर। यानी GST का रेट स्ट्रक्चर क्या है? गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब फॉर द कलेक्शन ऑफ GST। जनरली गुड्स एंड सर्विस टैक्स को चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 कैटेगरी डिसाइड की है। ये इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जो आपको नई एडिशन की बुक में प्रेजेंट होगा, लेकिन पुरानी एडिशन तक हमारे पास जैसी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 स्लैब डिसाइड किए गए हैं। जब आप नई बुक आपको मिलेगी तो उसमें कुछ चेंजेस में मिलेगा, सो उस समय हम उसको डिस्कस भी कर लिया जाएगा। सो दे आर बेसिकली 5 स्लैब फॉर द कलेक्शन ऑफ GST। 5 स्लैब क्या है? कुछ गुड्स एंड सर्विस पे 0% का टैक्स लगता है, एंड सच काइंड ऑफ फूड इंक्लूडिंग एसेंशियल आइटम्स। नंबर 5% जो रेट ऑफ GST है उसमें कॉमन यूज़ आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। 12% स्टैंडर्ड रेट है, 18% मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, एंड 28% जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है लग्जरी आइटम एंड टोबैको पे चार्ज होता है। सो GST is paid on purchase of goods and services and it is collected from the customer on sale of goods and services। जनरली आप अपने दिमाग में एकदम बात रख लीजिए कि GST हम कब पे करते हैं।
जीएसटी हम पे करते हैं जब हम किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेस करते हैं। अगर हमने किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेस किया तो उस गुड्स एंड सर्विस की प्राइस के साथ साथ आप उस पर जीएसटी भी पे करते हो। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सो आप जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंजप्शन पर्पस के लिए ख़रीदते हो या रीसेल के पर्पस से ख़रीदते हो, आप उस पर जीएसटी पे करके ख़रीदते हो। एंड इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कौन जीएसटी कलेक्ट करता है? जो उस गुड्स एंड सर्विस को सेल करता है। जीएसटी पेड टर्म्ड एज इनपुट्स जीएसटी। अगर आप जीएसटी पे करते हो तो उसको हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं। एंड इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, जिसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। ओके यानी जीएसटी पेड को हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं और जीएसटी कलेक्टेड को हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। अब आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने जीएसटी को, इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ कलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज़ आप एक रिटेलर, आपने कस्टमर को सेल किया और होलसेलर से परचेस किया। जब आपने होलसेल से परचेस किया तो 10 रुपीज़ जीएसटी पे किया, यानी आपका इनपुट जीएसटी है 10 रुपये। और जब आपने कस्टमर को वही सामान बेचा तो आपने कस्टमर से 12 रुपये जीएसटी लिया, क्योंकि आपका जाहिर सी बात है आप उस पर प्राइस इंक्रीज़ करोगे। तो 12 रुपये सपोज़ आपने जीएसटी चार्ज किया फ्रॉम द कस्टमर, तो ये आपके लिए हो गया आउटपुट जीएसटी। ओके यानी इनपुट का मतलब क्या होता है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं, तो जैसे अगर रिटेलर यहाँ पे होलसेलर से सामान खरीद रहा है तो 10 रुपये का जीएसटी पे कर रहा है, तो वो उसको क्या बोलेगा? इनपुट जीएसटी। वहीं उसने फिर वो सामान किसको बेचा? कस्टमर को, फाइनली कस्टमर को, तो उससे जीएसटी लिया 12 रुपये, तो ये हो गया उसका आउटपुट जीएसटी। आउटपुट का मतलब जीएसटी मिला और इनपुट मतलब जीएसटी दिया। अब आपने देखा कि इस रिटेलर की बात करें तो उसने जीएसटी दिया है 10 रुपये और जीएसटी इसको मिला है कस्टमर से 2 रुपये, यानी इसके पास 2 रुपये का जीएसटी पड़ा हुआ है। यानी मैंने आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया, यानी फाइनली रिटेलर के पास 2 रुपये का जीएसटी पड़ा हुआ है। ओके तो ये 2 रुपये का जो जीएसटी है वो किसको देगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। यही बात वहाँ कहा जा रहा है। एज सच GST paid on purchase input GST is not a cost of the purchaser, but it is an asset since it can be set off against GST collected on sales। यानी कि जो GST हम पे करते हैं उसे परचेस की कॉस्ट नहीं मानते, उसे अलग से टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और वो उसकी एसेट्स होती है। यानी इनपुट GST जो होती है वो एसेट्स होती है, वेयर इज आउटपुट GST एक लाइबिलिटी होती है। सो GST कलेक्टेड ऑन सेल्स इट नॉट एन इनकम ऑफ द सेलर बट इट इज़ अ लाइबिलिटी। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि GST जो कलेक्ट होती है यानी इनपुट वो एसेट्स होती है, और GST जो आप पे करते हो, ठीक है, तो उसे आप एसेट्स मानते हो। GST जब आप कलेक्ट करते हो यानी आपको जब GST मिलता है, क्योंकि वो पैसा आपका तो है नहीं, वो पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। और GST जब आप पे करते हो तो आपकी एसेट्स इसलिए बनती है क्योंकि आने वाले समय में जब आपको GST मिलेगा तो आप उसी इनपुट GST का एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसलिए आप जनरली टर्म आप सुनते होंगे, जब फाइनेंस मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती होगी तो उसने बोलते हैं इन GST का क्रेडिट। GST का क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आउटपुट GST को इनपुट GST के साथ एडजस्ट करना, इसलिए इनपुट GST का हमेशा क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट करने का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपको GST मिला 100 रुपये सामान को बेचने से। सपोज़ आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और 100 रुपये लोगों से, कस्टमर से GST कलेक्ट कर लिया, तो वो 100 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना है। लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को बेचने से पहले आपने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा भी तो होगा या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड किया होगा, तो आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ टैक्स दिया होगा, उसको आप बोलोगे इनपुट GST। तो आप हमेशा अपने GST कलेक्टेड में से GST पेड को माइनस करोगे और जितना बैलेंस आएगा उतना ही पैसा गवर्नमेंट को पे करोगे। ये नहीं कि आपको अलग से कोई GST पे करना है। GST का इफ़ेक्ट हमेशा उसी पे पड़ता है जो उसका फाइनल कंज्यूमर होता है। रिटेलर पे, होलसेलर पे, मैन्युफैक्चरर पे उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। नाउ वी विल मूव टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स
related to the GST. Usually GST paid on purchase of goods and services is not a cost for the purchase but an assets because it can be set off against GST collected. ये बात मैंने भी बताई कि जब आप GST पे करते हो तो आप उसको इनपुट GST बोलते हो और जब आप GST रिसीव करते हो तो उसका आउटपुट GST बोलते हो। तो इनपुट GST जो होती है एसेट्स होती है और आउटपुट GST जो होती है वो आपकी लायबिलिटी होती है। एसेट्स इसलिए होती है क्योंकि उसे आप आउटपुट GST के साथ एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, however in certain cases GST paid cannot be set off against GST collected। अब ये भी बात याद रखिए, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप GST पेड को GST कलेक्टेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। इन सच केसेस GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इट इज़ अ कॉस्ट फॉर द परचेजर। तो सिचुएशन में जो आप GST पे कर रहे हो वो उस गुड्स की कॉस्ट मानी जाती है, ना कि आपकी एसेट्स मानी जाती है। जैसे अगर हम आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, सपोज़ रिटेलर है, रिटेलर ने 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा और 10% GST पे किया, यानी 100 रुपये, यानी टोटल 1100 रुपीज़ एक्सपेंस किया। तो रिटेलर क्या करेगा, 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट उसने खरीदा तो 100 रुपये उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई और ये जो हो गया टैक्स जिसे हम लोग बोलेंगे इनपुट GST, क्योंकि उसने GST तो पे किया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इन फ्यूचर अगर वो उस गुड्स को सेल करता है और उस पर कोई GST रिसीव करता है, सपोज़ फ्यूचर में उसने उसी प्रोडक्ट को 1200 रुपये में बेच दिया और GST कलेक्ट किया 120 रुपये, क्योंकि 10% के हिसाब से GST। अब आप देखो, सेल किया उसने 1200 रुपये का, 200 रुपये अपनी प्रॉफिट कमा ली, 120 रुपये GST कलेक्ट किया किससे, कस्टमर से। अब उसने GST पहले कितना दिया हुआ है, 100 रुपये का, GST यहाँ इसको कितना मिल गया, 120 रुपये। तो फाइनली 20 रुपये वो किसको देगा, गवर्नमेंट को। यानी उसकी इनपुट GST में से इनपुट GST का उसे क्रेडिट मिला आउटपुट GST से। आउटपुट GST का मतलब होता है GST कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इनपुट GST का मतलब होता है GST पेड ऑन द परचेज ऑफ एनी गुड्स। बट कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप GST पे तो करते हो बट उस GST पेड का GST कलेक्ट के साथ आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, यानी रेस्टोरेंट में गए और खाना खा लिया, तो रेस्टोरेंट का बिल आया 500 रुपीज़ और टैक्स आया, GST टैक्स आया 50 रुपये। तो टोटल आपने 550 रुपये रेस्टोरेंट ओनर को दे दिया। अब आप फ्यूचर में कभी कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, क्योंकि आपने तो उसका कंजप्शन कर लिया, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो इस 50 रुपये का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। फ्यूचर में आपने GST पाया तो पूरा का पूरा GST आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये 50 रुपये कहीं भी डिडक्ट करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप GST पे करते हो, वहाँ आप खुद एक कस्टमर होते हो, तो आपको उसका बेनिफिट, उसका टैक्स का क्रेडिट आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जैसे फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट का बिल हो, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट टू गुड्स सर्विस फॉर पर्सनल यूज़। अब आप देखिए इसमें पूरी बातें जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही है कि आप उसके फाइनल कस्टमर, आप उस चीज़ों को फिर से रीसेल नहीं कर सकते हो, फिर से आप उसको किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप खाना खाओ, फिर वो खाना किसी और को दे दो। आपने खुद का इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस, उससे क्या किसी दूसरे को कोई बेनिफिट मिलेगा? आपने खुद के लिए क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप अरेंज की, क्या आप कोई दूसरे को भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर इन सारे आइटम्स पे GST पे करते हो तो इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल बात करें, आपने घर के लिए अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी, ओके, उस मोटरसाइकिल या फिर जिसे कह सकते हैं स्कूटी या फिर बाइक खरीदी, उस पर आपने गवर्नमेंट को GST पे किया और करते भी हैं।
तो अगर इन केस आपने उस व्हीकल को 10 साल चला के, 5 साल चला के जब आप उस गुड्स को सेल करोगे, उस व्हीकल को सेल करोगे, तो उस समय आप उससे जीएसटी लोगे। लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने जीएसटी लिया तो आपको पूरा जीएसटी देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी आपने दिया है वो आपने अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए दिया है। ओके। नंबर 3, जीएसटी पेड इज़ रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी हम जीएसटी पे करते हैं, ठीक। अब वो जीएसटी पेड यानी इनपुट जीएसटी जो है उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, बट वो जीएसटी पैसा जो आपने पे किया है वो आपको रिटर्न आ जाता है। जैसे मैंने 1000 रुपीज़ का सामान ख़रीदा और 10% जीएसटी पे किया 100 रुपये, तो आपको टोटल बिल कितना बना? 1100 रुपये का। आपने इसमें से 500 रुपये का सामान वापस लौटा दिया। ओके, यानी 50 रुपये आपको और जीएसटी का रिफ़ंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी इसका क्रेडिट आपको जीएसटी पेड के साथ नहीं मिलेगा, आउटपुट जीएसटी के साथ नहीं मिल रहा है। आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसके थ्रू आपने जो जीएसटी पे किया है वो ऑटोमेटिक आपका उस ट्रांजैक्शन से वो जीएसटी लैप्स्ड हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। जैसे परचेज रिटर्न, आपने कोई सामान ख़रीदा तो जीएसटी पे किया होगा, यानी इनपुट जीएसटी किया होगा। जब आप उसी सामान को वापस लौटा दोगे तो जीएसटी भी आपको रिफ़ंड हो जाएगा। जाहिर सी बात है, दुकान पे गए, कोई सामान खरीदा, उस पर टैक्स दिया, तो जब उस सामान को वापस लौटाओगे तो टैक्स का पैसा भी रिटर्न आ जाएगा। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर ने पर्सनल पर्पस के लिए कोई सामान निकाल लिया, तो वो उस जीएसटी पेड का कभी भी कोई भी क्रेडिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा। वो जीएसटी पेड जो है वो ऑटोमेटिक रिफ़ंड हो जाएगा। गुड्स लॉस्ट एंड स्टोलन, आपने कोई सामान ख़रीदा और वो सामान जल गया या चोरी हो गया, तो उस पर अगर आपने कोई जीएसटी पे किया है तो उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए नहीं मिलेगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड और बिकॉम नॉट सेलेबल, ये भी सिचुएशन होती है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में बांटा, तो उस गुड्स के जैसे अगर आपने गुड्स को बांटा फ्री सैंपल में तो एंट्री याद है आपको? हाँ सर याद है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस। जब खरीदा होगा तो क्या एंट्री पास किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप परचेज के साथ साथ आप क्या पे करो? जीएसटी भी पे करो। तो जीएसटी आपके लिए क्या है? एसेट्स है, तो एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक। आपने कोई सामान खरीदा तो परचेज डेबिट किया और टू कैश पे कर दिया। अब आपने जीएसटी भी पे किया है, 100 रुपये का 1000 रुपये का सामान है, 100 रुपये टैक्स दे दिया, 1100 रुपये टोटल दिया। जीएसटी 10% है। और किस तरह का जीएसटी? जब आप जीएसटी खरीदते हो तो जीएसटी पे करते हो, तो जीएसटी पे को आप लोग क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। यस सर। अब वही सामान आपने वापस लौटा दिया या सैम्पलिंग में दे दिया, सैम्पल में दे दिया, तो एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब देखो परचेस डेबिट हुआ था, अब जब आपने वो सामान ही सैंपल के रूप में दे दिया, मान लो 500 रुपये का सामान सैंपल में दे दिया, तो आपका 500 रुपये का सामान क्या हो गया? चला गया। तो उसके साथ साथ जीएसटी भी तो चला गया 50 रुपये का। किस नाम से गया? इनपुट जीएसटी के नाम पे। यानी टोटल आपका खर्चा कितना हुआ? 550 रुपये एज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। गुड्स गिवन एज अ गिफ्ट और चैरिटी। सिमिलरली आउटपुट जीएसटी रिवर्स डेबिटेड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। ऐसे ही आपको ये भी याद रखना है कि जब आप कोई सेल करते हो तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, लेकिन अगर वही सेल आप रिटर्न कर देते हो तो जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने कोई सामान बेचा और जीएसटी भी लिया, सामान का प्राइस भी ले लिया, तो जब आप उस गुड्स को रिटर्न कर दोगे, जब आपके पास वो गुड्स रिटर्न आ जाएगा तो क्या करोगे भाई? उसका जीएसटी भी तो लौटा दोगे। तो उस केस में आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स हो जाती है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जीएसटी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स हैं कि जीएसटी किस पे चार्ज होता है, किस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है। तो बेसिकली फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। कुछ
ट्रांजैक्शन या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के क्राइटेरिया में आती ज़रूर हैं बट उन पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। ओके, अगर आप वेजेस एंड सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हो तो इस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होता। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज़। अगर हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को या फिर किसी अदर कंट्रीज़ की एम्बेसी को, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, आप अपने घर का बिजली बिल और पानी का बिल देखिएगा, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। एजुकेशनल सर्विसेज, आप फीस भरते हो, उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उस सिचुएशन में आपको जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं होती। सो टोटली आज हम लोगों ने पूरे सेशन में जीएसटी के थ्योरेटिकल पार्ट्स एंड वो थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किए जो कि हमें अकाउंटिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैंने आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कुछ जनरल एंट्री पास करके भी दिखाई कि कैसे हम लोग जनरल एंट्री को पास करते हैं। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग जो आज भी पढ़े हैं उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है which are charged at a prescribed rate on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption, and this act is totally based on the principle of one nation one tax. This act implement in all over the India from 1st July 2017. The three central level taxes merge into GST like excise duty, service tax and central sales tax, and 6 state level taxes which are also merged into GST like octroi entry tax, purchase tax, entertainment tax, VAT, luxury taxes and tax on lotteries. In the last edition book, according to the last edition book, there are basically 5 slabs for the collection of GST, that is 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. The most important part is when we paid the GST, it will be termed as GST paid, that is input GST. And when we are GST collected on the sale of goods and services, it will be termed as output GST. So GST paid, which is also known as input GST, is not a cost for the purchaser but it is an asset, so it will be debited. And when we collect the GST on the sale of goods and services, it will be termed as output GST and it will be termed as liability, so it will be a credited. And input GST can be set off against output GST. Okay, but some of the cases where GST paid, that is input GST, is not available for the adjustment against the output GST, like restaurant bill, health insurance, membership fees, maintenance of building, vehicle purchase, staff salary and gift, and goods and services used for personal purpose. And some of the following situation are also occurred where GST paid, that is input GST, will be reversed, that is GST paid, that is the input GST, it will be debited. But when some of the situation are occurred like purchase return, goods taken by proprietor, goods lost or stolen, goods destroyed, goods distributed at free sample, goods given away as charity, in this situation input GST will be reversed and it will be credited. So such kind of amount cannot be available for the adjustment against the output GST. Similarly, output GST is also reversed, that is debited, because output GST will be credited, but when it will be reversed, so it will be debited in case of sales return. When we sell the goods, we receive the GST, but when we return the sale goods, when we return the sale goods, so in this situation output GST is cancelled by debiting them. So I hope कि आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने
जिस भी थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकली पॉइंट पे डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा. बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और सजेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज़ आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.